Good morning, students. Welcome to you in your political science class. As you know, in our last class we started our chapter globalization, that is ninth chapter, and in the last class we read about the concept of globalization. In that concept of globalization, we read about the three examples given in our book. One example was a man like Janardhan, and second one was Ramdhari, and third one was one lady Sarika. How they are providing their services to other countries and how they are buying things from other countries. And in that part we also do the concept of globalization is a multi-dimensional concept. It has political, economic and cultural manifestation. It has political, economic and cultural consequences. So, and there is in globalization, there is flow of things. Flow of different things like ideas, commodities and capital and movement of people. Ideas, commodities are moving from one place to another. Then there is movement of people, and more than the capital is flow of capital from one part to another. After and in that we also read about the causes of globalization. In causes of globalization we read that today due to technological advances, technological development, this process of globalization has become possible. This has improved, technological advances has improved the globalization process as compared to the earlier time. So today in this class we will read about the next two parts, that is the first of all political consequences and second one economic consequences. In our book there are three consequences given. One is political, second one is economic and third one is cultural. But in this class we will read about the political and economic consequences. आज हमारी जो की क्लास है इसके अंदर हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस का और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। देखिए आज अगर हम कहें कि जो ग्लोबलाइजेशन है it has political manifestation. What are the political consequences of globalization? तो at the most simple level, अगर आप हम बहुत simple level पे बात करें तो globalization result in the erosion of state capacity. Erosion of state capacity. आज globalization की वजह से जो state की capacity है वो erosion हो गई है उसकी। मीन्स इसका मतलब क्या है? दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। देखिए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू रीड इन योर अर्लियर क्लासेस आल्सो कि गवर्नमेंट जो होती है दैट इज ए वन एजेंसी व्हिच फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द पीपल, व्हिच परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही स्टेट की कैपेसिटी, स्टेट को क्या काम करना है वो एबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली पहले से कम हो गई है। कैसे? अर्लियर देयर वर पुलिस स्टेट्स, जो पहले सबसे पहले जो स्टेट्स होते थे द स्टेट वर कॉल्ड पुलिस स्टेट। व्हाट वाज पुलिस स्टेट? इन दैट स्टेट द गवर्नमेंट हैज टू डू ओनली टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। उस टाइम पे गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था और काम नहीं करने होते थे। बट आफ्टर दैट देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स टू डू द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसमें गवर्नमेंट लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करती है, उसको वेलफेयर स्टेट का नाम दिया जाता है। लेकिन आज इस वेलफेयर स्टेट का जो है कंसेप्ट वो भी उसकी भी इरोजन हो चुकी है। आज स्टेट कैपेसिटी की इरोजन हो गई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा हम
withdraw of the many of the earlier functions which were directed earlier, जो कि पहले काम at which were directed at economic and social well-being, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, जो फंक्शन हैं, वो पहले से विथड्रॉ हो गए हैं, पहले से जो पहले थे अब वो कम हो गए हैं, क्योंकि दिस इज डायरेक्टेड एट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। आज वेलफेयर स्टेट की बजाय इट इज़ द मार्केट that becomes the prime determinant of economic and social priority। आज वेलफेयर स्टेट की जगह मार्केट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, ज़्यादा प्राइम डिटर्मिनेंट हो गई है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, आज जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका रोल ज़्यादा बढ़ गया है। उनकी एंट्री होने के बाद it leads to the reduction in the capacity of the government to take decision on their own। गवर्नमेंट की कैपेसिटी अपने आप डिसीजन लेने की जो है, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के आने से जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है टू टेक डिसीजन दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड हो गई है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ जो है वो अपने कंट्री में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मार्केट के आने से गवर्नमेंट की कैपेसिटी जो है काम करने की, या गवर्नमेंट के जो पहले फंक्शन थे वो कंपैरेटिवली कम हुए हैं। बट एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है काम करने की वो बिल्कुल ही इससे ख़त्म हो गई है। बट still we can say the old jealousies and rivalries between the country, जितने भी jealousies कंट्रीज के बीच में और आपस में जो rivalries हैं, that have been seized in matter of world politics। ठीक है, वो चाहे वो that have been seized in world politics, लेकिन स्टेट को still the state continues to discharge its essential function। लेकिन स्टेट को आज भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ रहा है। वो कौन से फंक्शन हैं? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड सो हम कह सकते हैं कि चाहे स्टेट की शुरू में हम की कैपेसिटी कंपैरेटिवली ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज स्टेट के काम करने की कैपेसिटी जो है, जो उसकी स्टेट कैपेसिटी उसकी इरोजन हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही स्टेट को कुछ नहीं करना। आज भी स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आज भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अपने सिटीजन के लिए। तो इसके साथ साथ द फर्स्ट, और अगर हम बात करें in some respect state capacity has received a boost as a consequences of globalization। कुछ कैपेसिटीज़ में स्टेट की स्टेट की कुछ रिस्पेक्ट्स में स्टेट की जो कैपेसिटीज़ हैं वो बड़ी हैं। कैसे? अभी भी तो आज ड्यू टू इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट, आज उसी की वजह से स्टेट हैज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टेट को जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने सिटीजन्स के लिए। दस वी कैन से द स्टेट बिकेम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। आज न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से स्टेट की जो आउटकम है, स्टेट की जो कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ी है आज टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आगे हमारा जो सेकंड पार्ट है दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? देखिए, आज अगर हम वर्ल्ड की बात करें, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस which are related with the economic matter। Among these organization, one which is very important, that is IMF, and second one is WTO। IMF full form International Monetary Fund and one another is WTO, World Trade Organization। We read this in our earlier classes, earlier chapter 1 which was
international organization, both are providing loans to the country, and WTO is regulating the trade among different countries. IMF, International Monetary Fund, is providing loans to the country. One World Bank is also there, which is providing loan to the different country. तो ये इकोनॉमिक, अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इसमें इकोनॉमिकली दे आर प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो इकोनॉमिकली अगर हम इसके बात करें कि व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो अर्लियर वी रीड अबाउट द flow of four things, that is ideas, capital, then commodities and people. Ideas, commodities and people, और उसके साथ साथ हमने commodities की भी बात की और flow of ideas, flow of commodity, flow of capital। लेकिन ये अगर आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के आने से ग्लोबलाइजेशन जो हुई है और उसमें जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिड्यूस कर दिया। अर्लियर ऐसा होता था कि गवर्नमेंट अपने ट्रेड बैरियर लगा लेती थी, ट्रेड बैरियर लगाती थी कि ताकि उसका जो अपनी इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश हो। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इम्पोर्ट है उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इसके साथ साथ क्या है कि रिस्ट्रिक्शन तो रिमूव हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी द रिस्ट्रिक्शन ऑन आज अभी भी कैपिटल जो है वो कैपिटल की जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गई है। कैपिटल के साथ साथ कमोडिटीज़ की जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव हो गई है कि अब इसलिए हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स आर देयर, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इज देयर। और लेकिन अभी भी जो मूवमेंट ऑफ पीपल है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल। इकोनॉमिक चीज अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड एक इंटीग्रेशन हो गई है, चीज़ें आ रही हैं, जो इम्पोर्ट के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन लोगों की मूवमेंट अभी भी उतनी तेज नहीं है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने आज भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है वीज़ा की फॉर्म में। इफ यू वांट टू गो फॉर US और एनी अदर डेवलप्ड कंट्री तो इजिली यू कांट गो, क्योंकि उसके ऊपर वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है जो कि इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता। और इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ जो हैं और उनके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं दे आर डिफरेंट। कुछ के ऊपर जो है वो अलग है, कुछ के ऊपर ज़्यादा असर हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ पे इसका जो असर है वो दैट इज़ लेस। और उसके साथ साथ हम एक और बात करें कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एन इंटरनल डिवीजन ऑफ ओपिनियन अमंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डिवीज़न ऑफ ओपिनियन हो गई है एक कंट्री के अंदर, कुछ को लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो अच्छी बात है और इससे लोगों को कुछ कहते हैं कि इससे जस्टिस नहीं मिल रहा, कि दिस इज़ ए वेरी वन थ्रेट फॉर जस्टिस इन ए वन कंट्री, कि न्याय के लिए जो है वो एक कंट्री के लिए रिस्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम पीपल दोज हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन, जो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आ गई हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो माइनर इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक टायर्स, बैटरीज, टॉयज़, वो अपने ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको आइदर या तो सर्वाइव होना है तो उसके साथ कंपटीशन होगा उनके साथ,
लेकिन कंपटीशन में वो पीछे रह रहे हैं क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि डेवलप्ड कंट्रीज की। और या तो आप कम्पीट और सर्वाइव, वन थिंग इज कि या तो कम्पीट करो जस्ट, अगर आप कम्पीट नहीं कर पा रहे तो आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आपको पेरिश जो है वो होना पड़ेगा, आपको ख़त्म होना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ड्यू टू देयर इज डिवीजन ऑफ ओपिनियन अमंग इन ए कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन दिस इज डिसएडवांटेज, कि या तो जो, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा ना हो कि अगेन देयर इज डीकोलोनाइजेशन इंस्टेड ऑफ डीकोलोनाइजेशन जो कि पहले हुआ था, ऐसा ना हो कि रीकोलोनाइजेशन हो जाए। रीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर वाली इंडस्ट्रीज इंडिया में आई हैं और धीरे धीरे वो भी अपना अगेन वो, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक छोटी कंपनी के तौर पे, धीरे धीरे उसने अपना रूल सेटअप कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से रीकोलोनाइजेशन हो जाए कि जो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं और धीरे धीरे वो अपना रूल ही ना यहाँ सेटअप करें। तो दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ ओपिनियन एंड वन पार्ट इज डिसएडवांटेजेस। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के अपने फ़ायदे भी तो हैं। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही क्या है कि देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। आज हमारे सामने जो चॉइस है वो बढ़ चुकी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारी इंडिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडिया की अपनी कंपनीज जो हैं, दे हैव बिकम मल्टीनेशनल कंपनी, दे लाइक एशियन पेंट्स और कुछ और कंपनीज जो हैं जो कि इंडिया की कंपनीज हैं लेकिन फॉरेन में उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है, फॉरेन में उन्होंने मनी इन्वेस्ट की हुई है, और साथ में सो मैनी पीपल आर गेटिंग जॉब ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन। आज मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप होने से इंडिया के बहुत सारे लोगों को काम मिला है, नई सर्विसेज हुई हैं लाइक कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, और ये सारी सर्विसेज शुरू हुई हैं। और इसके साथ साथ लोगों के सामने जो चॉइस है उनको बेटर हो गई है, चॉइस उनके सामने बहुत है कि एक प्रोडक्ट लेना है तो वो किस कंपनी का लिया जाए, दे विल कंपेयर दिस, क्योंकि एक इतने दूर बैठे हुए मिलियन प्रोड्यूसर जो हैं, producers, there are million of producers and they are very far away from each other, but the goods are available in one country, other country, सब countries में जो goods हैं वो available हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जहाँ ग्लोबलाइजेशन जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस तो हैं इन इकोनॉमिक, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो बट स्टिल देयर आर एडवांटेजेस, सो मेनी एडवांटेजेस, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इज देयर, कैपिटल इज देयर इन वन कंट्री टू अनदर। सो इन दिस वे आवर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज कंप्लीट। In the next part is the cultural consequences and impact of globalization on India, which we will read in our next class, जो कि हम अपनी next class में करेंगे। All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment, learn work side by